Dear students, welcome to science class. Before starting the chapter The Universe, first we will take a ride to the universe. Students, look, there are so many celestial bodies like stars, galaxies, constellations. Constellations like Ursa Major, Ursa Minor, Scorpius, and solar system, sun, planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune. Okay. Other celestial objects like moon, asteroids, comets, meteorites, so many celestial bodies. Okay. See how beautiful they are. Okay, now we will discuss in detail about all after this ride. This ride is enjoyable. Okay, so see the twinkling stars, how beautiful they are. Wow, wonderful. We are reaching to the galaxy. Okay, this is our galaxy. We live in Milky Way galaxy. Okay, it has spiral arms and look like disc. It is also called Akash Ganga. Now, students, let's go back to our planet, that is Earth, on Earth. Okay, and we will come from the galaxy, Milky Way galaxy. Okay, आपको पता है हम कहाँ तक ट्रेवल करके आए हैं, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है? 100,000 लाइट ईयर्स. लाइट ईयर्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. नाउ कम टू द classroom. We will study about universe. Okay, how was your ride? Enjoyable? Okay. Now we will start the universe. Whatever you have seen during the ride, so we will discuss about all these things. Okay, so new chapter is our universe. Our universe. Okay, so we will cover some points in this chapter, that is, what is universe and how it was formed. How it was formed. Okay. What is universe and how it was formed. Second, study of solar system and its members सोलर सिस्टम की स्टडी करना है और सोलर सिस्टम के कौन से मेंबर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट, लर्न अबाउट डिफरेंट celestial bodies. Okay. Later I will explain what are celestial bodies. Okay, celestial bodies क्या होती है, उनके कितने होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है. Okay, next is phases of moon. Okay, phases of moon. And phases of moon means you already study in lower classes. Okay, and last is about artificial satellites. Artificial satellites. Clear? So first, what is universe and how it was formed. Second, study of solar system and its members. Third, learn about different celestial bodies. Fourth, phases of moon. And fifth one is about artificial satellites. Okay, so we will discuss one by one all these points. So first one is, what is universe? What is universe? Okay, the universe
includes all energy and matters. Okay, the universe includes all form of energy, all forms of energy. Okay, you know the type of energies. So many types of energy we know: mechanical energy, kinetic energy, potential energy, heat energy, solar energy, light energy. So many types of energy. So universe includes all forms of energy and matters. Okay, so matters like, मतलब कौन से मैटर की हम बात कर रहे हैं? एनर्जी तो आपने देख ली, बट किस टाइप के मैटर्स की बात कर रहे हैं? मैटर लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, स्पेस एक्सेट्रा. ओके, मतलब हर एक मैटर की एनर्जी एज वेल एज स्टार्स, मून्स, गैलेक्सीज एंड स्पेस, all the things are considered under the universe. Okay, so next term is, मतलब हम एक एक टर्म को एक्सप्लेन करते जाएंगे आपके लिए. ओके, सेकेंड वन इज सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ये क्या है? okay? Celestial bodies or celestial objects means any naturally occurring bodies, जो भी नेचर में है, जिनकी एग्जिस्टेंस नेचुरली है. सो एनी नेचुरल बॉडीज दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर. ओके, सो द नेचुरल बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स दैट लोकेटेड, द नेचुरल objects that are located outside the earth atmosphere are called celestial bodies. क्लियर हुआ? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाएंगे. ओके, सिंपल. तो व्हाट दे आर प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स, गैलेक्सीज. all these are celestial bodies. Clear? Next, astronomy. Next one is astronomy. Okay, so astronomy क्या है? Astronomy is the branch of science in which we study about the universe. Simple. Okay, so next term is astronomy, the branch of science, in which we study about the universe. Okay? So एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं. So those who study about the universe are known as astronomers. एस्ट्रोनॉमर्स क्या कहलाते हैं? वही जो यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं. साइंस की ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी, और जो बंदे उसमें यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमर्स. ओके, द पर्सन who study about the universe
are known as एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, तो साइंस की ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी, और वो साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं यूनिवर्स की, वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यूनिवर्स इज ह्यूज लार्ज वन। ओके, सो हम तो यहाँ है, हमसे मीन्स 100 light years. Light years is a unit for distance. When we want to measure long distance beyond our imagination, so this distance is measured in light year. Means कई मिलियन, कई ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियंस के बाद जो डिस्टेंस होती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। आगे अपन उसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट। सो astronomers, how they study about the celestial bodies or planets or moon or galaxies? So with the help of telescope. Okay, you heard previously this word telescope. What is telescope? Telescope is an instrument in which some lenses and mirrors, curved mirrors को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो बहुत दूर की थिंग को, चीज को हमें बहुत पास में और बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। ओके, सो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज एंड कर्व्ड मिरर। ओके, इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट containing the spatial arrangement of lenses and curved mirrors, okay, an instrument containing the spatial arrangement of lenses and curved mirror. क्लियर है? मतलब उसमें लेंस और मिरर को इस तरह से कॉम्बिनेशन में करते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट के पिक या उसका जो इमेज है वो हम तक आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, सो लेंसेज मेक फार अवे ऑब्जेक्ट look closer and larger. Clear? Lenses make far away object look larger and closest. ओके, ऐसा लगता है जैसे बहुत पास से देख रहे हैं और बहुत बड़ा दिखता है ऑब्जेक्ट। इसमें मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस मींस जो चीजों को बड़ा करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेलीस्कोप। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। यूनिवर्स कैसे बना था? We can say roughly 13.7 billion years ago. Roughly 13.7 billion years ago, universe was formed. आप समझ पा रहे हैं? 13.7 billion year ago, universe was formed. Okay, our universe was extremely small. At the beginning, our universe was extremely small, hot, dense, and racing with pure energy.
ओके, रेजिंग विथ प्योर एनर्जी मीन्स वहां बहुत एकदम अल्ट्रा प्योर एनर्जी थी. यूनिवर्स वॉज extremely small, hot, dense and raging with pure energy. मीन्स जो यूनिवर्स था बहुत छोटा सा था, बहुत हॉट था, उसका टेम्परेचर कई मिलियन डिग्री था, ठीक है. और डेंस था, डेंस मतलब कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली ऑल द थिंग्स सिचुएटेड एट द स्मॉल प्लेस. ओके, एंड इट हैज प्योर एनर्जी. क्लियर, ठीक है, बहुत सारी उसमें एनर्जी थी. क्लियर. सो दिस enormous energy caused the violent explosion. इस इतनी सारी एनर्जी के कारण वहां पर एकदम से ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ. ठीक है, एक्सप्लोजन पढ़ा ना अपने फायर वाले चैप्टर में. सो एक्सप्लोजन हुआ एंड द स्मॉल साइज यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. फैलता गया एट an incredible speed. वो जो छोटा सा यूनिवर्स था बहुत डेंस था, उसमें बहुत सारी प्योर एनर्जी थी. सो ड्यू टू द enormous amount of energy, ओके, सो एक वहां पर क्या हुआ, एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ एंड द स्मॉल साइज यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपांडिंग एट एन इनक्रेडिबल स्पीड. फिर वो बहुत तेजी से, स्पीड से वो क्या होने लगा, एक्सपैंड होने लगा, बड़ा होने लगा, फैलने लगा. ठीक है, मीन्स द सेलेस्टियल बॉडीज आर नॉट स्टैटिक. मीन्स वो कैसे फैल रहा है, तो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज थी वो हम मान के चल रहे थे कि वो फैलते जा रही है ना. वो सेलेस्टियल बॉडीज जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून है, सन है, स्टार्स हैं, सो इट मीन्स the celestial bodies are not static. वो static बिल्कुल भी नहीं है. वो क्या हो रही है, एक incredible speed से वो दूर, they are flying away from the earth. वो gradually अभी भी वो expansion तो हो रहा है, expand हो रही है. तो all the celestial bodies are flying away from the earth at incredible speed. बहुत स्पीड से वो हमारी अर्थ से दूर जा रहे हैं. तो अर्थ से दूर जा रहे हैं मतलब फैलते जा रहा है, मीन्स यूनिवर्स का एक्सपेंशन होते जा रहा है. ठीक है, क्लियर है. सो लाइक इन दिस वे आवर यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड. क्लियर है. सो वी विल डिस्कस celestial bodies one by one. Okay, so first we will discuss about stars. So what are stars? Star. Okay, a star is a huge ball of hot gases. Okay, बहुत बड़ी बॉल है. आपको स्टार इतने से दिखते हैं, छोटे से दिखते हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें वो स्मॉल दिख रहे हैं. बट दे आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, ओके, विच गिव्स ऑफ लाइट एंड हीट. वो हमें क्या दे रहे हैं, हीट भी देते हैं और लाइट भी देते हैं. डेफिनेटली जब हॉट गैसेस हैं तो दे विल produces heat also. So a star is a huge ball of hot gases. hot gases की बॉल है वो, है ना, which gives off large amount of heat and light. They appears to twinkle. वो ऐसे लगते हैं जैसे ट्विंकलिंग हो रही है उनमें. Why they are twinkling? Okay, so the reason behind their twinkling is you know our
एटमॉस्फेयर इज मेड बाय मैनी लेयर्स. ओके, हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं. क्लियर है? क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं. सो व्हेन दे लिबरेट लाइट, सो व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, so it passes through the so many layers of atmosphere, and these layers reflect the light. Okay, so light which comes from the star has been reflected by the layers of atmosphere. That's why the star appears twinkling. Okay, मतलब वो ट्विंकलिंग उनमें हमें दिखती है, वो एक्चुअल में नहीं ट्विंकल करते हैं. क्लियर है? सो दे अपियर टू ट्विंकल. द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ यूनिवर्स एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उनसे वो रिफ्लेक्ट होती रहती है. क्लियर है? इसलिए हमें ट्विंकलिंग दिखती है. सन इज द स्टार. सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड ह्यूज balls of hot gases. तो सन तो इतना बड़ा दिख रहा है, और वो जो स्टार जिसको हम एक्चुअल में स्टार बोलते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, और सबसे क्लोजेस्ट स्टार है सन. मतलब हमारे प्लेनेट से यदि हमको सन इतना बड़ा दिख रहा है, तो किसी दूसरे प्लेनेट से यही सन छोटा सा ट्विंकलिंग स्टार दिखेगा. ठीक है? सो हमारी अर्थ से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्टार क्या है? सन. दैट्स व्हाई इट लुक्स अ बिग बॉल. क्लियर है? एंड इट प्रोवाइड्स अस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. सन से तो हमें लाइट मिल रही है, सन से तो हमें हीट मिलती है ना? तो ये स्टार है सन एक. ठीक है? तो सन कितना बड़ा है? हमको ऐसा लगता है कि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है और सन छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में. बिल्कुल नहीं. यू नो, सन इज लार्जर देन अर्थ. सन इज 1.3 मिलियन टाइम्स. हाउ मच? 1.3 मिलियन टाइम्स larger means bigger, times bigger than Earth. Sun is 1.3 million times bigger than Earth. It means यदि हम सन में अपने जैसी अर्थ रखना चाहें तो इतनी सारी अर्थ उसमें आ जाएंगी. इतना बड़ा है सन. क्लियर है? एंड ऑल द स्टार्स आर ट्रेवल इन अ डेफिनेट पाथ. उनके अपने अपने सेपरेट एक रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स होते हैं. उनके अपने एक ऑर्बिट्स होते हैं. तो वो हमारी गैलेक्सीज में अपने अपने ऑर्बिट में वो रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं. ओके, सो स्टार्स ट्रेवल इन देयर एक रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स होती हैं. उनकी अपनी अपनी खुद की ऑर्बिट्स होती हैं इन द गैलेक्सी. वो अपनी अपनी गैलेक्सीज में ट्रेवल करते रहते हैं. सो स्टार्स आर सो फॉर फ्रॉम द अर्थ. देयर मोशन टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी विजिबल टू अस. मतलब हमें दिखने के लिए, कोई स्टार दिखने के लिए वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है ट्रेवल करने में, तब कहीं हम उसे देख पाते हैं. Sky full of stars. See? Next celestial body is galaxies. Approx 100 billion stars group together with the dust and gases to form galaxy. Okay? Approx 100 billion stars are grouped together with dust and gases to form galaxy. Approx 100 billion stars grouped together with
डस्ट एंड गैसेस, बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे स्टार्स मिलके गैलेक्सीज बनाते हैं, उनके ग्रुप को हम गैलेक्सी कहते हैं। ओके, इन द यूनिवर्स देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट। ओके, 100 बिलियन स्टार्स मिलके एक गैलेक्सी फॉर्म कर रहे हैं, और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में? अप्रॉक्स 100 बिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट। ओके, सो वी लिव इन अ गैलेक्सी which named Milky Way galaxy. Okay, the sun and our earth, हम जिस पर हैं, अर्थ मतलब हमारा प्लेनेट अर्थ है, हम मतलब अर्थ एंड सन आर पार्ट्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर है? सो मिल्की वे गैलेक्सी इज आवर गैलेक्सी, सन एंड अर्थ a part of Milky Way galaxy. Why we call Milky Way? Okay, due to its color. मिल्क के कलर का इसमें ब्राइटनेस है. Okay, and Milky Way galaxy is also known as आकाश गंगा. मिल्की वे गैलेक्सी को क्या नाम दिया हमने? आकाश गंगा. एंड इट्स शेप इज डिस्क लाइक शेप. इसका शेप कैसा है? डिस्क लाइक है. ओके, एंड इट हैज स्पाइरल आर्म्स. इसके स्पाइरल आर्म्स हैं, मीन्स इस तरह से, इस तरह से स्पाइरल जानते ना वो, तो इसमें इसके स्पाइरल आर्म्स हैं और इसका शेप जो है डिस्क लाइक शेप है. ओके, सो this is the Milky Way galaxy. See the picture. The Milky Way galaxy, our galaxy, also called Akash Ganga. Next celestial body is constellations. So, क्या पढ़ेंगे हम? Constellations. Okay. So, what are constellations? A constellation is the group of stars which form a particular shape in the sky. Okay. A constellation is a group of stars that make a particular shape in the sky. It means some of the stars together and form a specific shape. So these are called constellations. Clear है? तो constellation is usually as given the name of the specific object or bodies structure they carry. Okay, उनका जो शेप होता है वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी से रिजेंबल करता है. उस बेस पे इनका हमने एस्ट्रोनॉमर्स ने उसे नेम दिया हुआ है. फिर से जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं वो स्टार्स के कुछ ग्रुप होते हैं जो कि स्काई में एक स्पेसिफिक शेप बना देते हैं. ओके, सो these constellations usually as given the name of the objects and or any bodies which resembles the shape. इनका जो शेप है उनकी बॉडी से रिजेंबल करता है, तो उसके हिसाब से हम इसका नाम देख पाएंगे. ओके, टिल नाउ नियर अबाउट 88 constellations आर रिकॉग्नाइज्ड. मीन्स वो एक ग्रुप होता है स्काई में. आप नहीं देखते हो कभी कभी समर में आप अपने टेरेस पे जाइए, आप स्काई को देखिए तो बहुत सारे स्टार्स आपको दिखते हैं. तो कभी कभी अपन कुछ एक शेप इमेजिन कर लेते हैं, है ना, उनको ज्वाइन करते हुए एक शेप इमेजिन कर लेते हैं. तो अभी तक 88 कॉन्स्टिलेशंस रिकॉग्नाइज किए गए हैं उनके शेप के बेस पे, जैसे कि उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, स्कॉर्पियस, कैसियोपिया, इस तरह से कुछ उनके शेप के बेस पे उनको नेम दिया गया है. ओके, सो these are the constellations. So we will discuss more about the
different type of constellations. Clear? So first Ursa Major. First is Ursa Major. It consists by 7 bright stars. Ursa Major जो है वो 7 bright stars से बना होता है. Clear है? So due to the resemblance of its shape with big spoon, जो एक स्पून होती है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो ये क्या है? उर्सा मेजर. उर्सा मेजर जो है वो एक बड़ी सी स्पून मीन्स हम ये कह सकते हैं उसका डिपर, जो डिपर होता है ना, स्कूप जो होता है, सो बिग स्पून के जैसा होता है. दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड बिग डिपर कॉन्स्टिलेशन. इसे क्या कहते हैं? बिग डिपर कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं. किसे? उर्सा मेजर को, ड्यू टू द शेप, इट्स शेप. सो इट्स शेप इज लाइक अ बिग spoon. That's why we call Big Dipper constellation. Okay? When observed with the faint stars along with this object, हम इसके साथ में जो और भी फेंट स्टार्स होते हैं, तो एक कंसोलिडेटेड वे में हमें एक शेप दिखता है. वो शेप दिखता है बियर के जैसे. ओके, इसके जैसे दिखता है बिग बियर. बियर के जैसे शेप दिखता है. सो वी ऑल्सो नेम्ड उर्सा मेजर एज ग्रेट बियर. इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट बियर भी कहते हैं. वन मोर नेम वी डिस्कस जस्ट नाउ, दैट इज बिग डिपर. सो वी कॉल उर्सा मेजर एज ग्रेट बियर और बिग Dipper also. Ursa Major is visible at all through the year. हमें पूरे साल दिखेगा. कहां पर लेकिन? But from the northern hemisphere we can see throughout the year. Indian astronomers had named this constellation as Saptarishi. और एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे क्या कहा है? सप्तऋषि. सप्तऋषि बाय because it consists by the 7 stars, so its name is Saptarishi. फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ. So Ursa Major is consist by 7 stars, main 7 stars, and they are arranged in a shape of spoon. So it looks like a big spoon situated at the in the sky. So we call Ursa Major as Big Dipper. Okay, and when we recognize its shape along with the faint stars which were near, those are near the Ursa Major, so its shape looks like a bear, so we call it also as Great Bear. Okay, and Indian astronomers call Saptarishi for Ursa Major. Okay, and see the picture. You can clearly see Big Dipper or bear shape also. Okay, you can't able to recognize in the picture bear shape, but you clearly see the Big Dipper shape. This is Ursa Major and also called Great Bear. Due to its shape, it is also called Big Dipper. Indian astronomers had named this constellation as the Saptarshi. The next constellation is Ursa Minor. Okay, Ursa Minor. Okay, this constellation is also having 7 stars. Clear? Like Ursa Major. इसमें भी 7 है, उसमें भी 7 थे. But the star of Ursa Minor is less brighter than the Ursa Major, and they are situated closer to each other as compared to Ursa Major. Ursa Major के stars के comparison में बहुत पास है और less brighter है. That's why we call Ursa Major as Little Bear.
इसे क्या कहेंगे? लिटिल बियर, ओके, और लघु सप्तऋषि, क्या कहेंगे इसे? लघु सप्तऋषि, ओके। इट्स शेप इज ऑल्सो लाइक डिपर, क्लियर है? इसका शेप भी स्पून के जैसे है, ओके, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 like this, okay. So this is also called Laghu Saptarishi, Little Bear and Ursa Minor. One more important thing is at the tail of the handle or at the tail of the Ursa Minor, this is Polaris, Polaris or pole star, ध्रुव तारा, सुना है ना आपने? ध्रुव तारा, ओके। सो दिस इज वेरी ब्राइट स्टार, ओके, इवन वी कैन से ब्राइटेस्ट स्टार, पोलरिस, ओके, एट द एंड ऑफ द टेल इट इज सिचुएटेड, ओके, एंड दिस अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। ये हमेशा क्या लगता है? स्टेशनरी दिखता है, ऐसा मूवमेंट नहीं दिखता इसमें, एक ही जगह पे हमें हमेशा दिखता है, ओके। why it is looks like stationary at the north, ओके, कहां पर दिखता है? नॉर्थ पे, नॉर्थ पे स्टेशनरी दिखता है। why? because it is located on axis of rotation of the earth। हमारा अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो उसके एक्सिस पर है, एक्सिस जो है उस पे जाके ऊपर दिख रहा है। तो डेफिनेटली हमारे अर्थ मूव तो कर रही है, लेकिन एक्सिस थोड़ी मूव करती है, क्लियर है? तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता है। तो इट इज लोकेटेड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। पोल स्टार हैज बीन यूज्ड फॉर नेविगेशन इन द नाइट। सो उस स्टार से नेविगेशन में हमें यदि कभी नाइट में तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मान लो हम ऐसी जगह है, तो उससे वो डायरेक्शंस, सेलर्स वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्शंस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ पे हमेशा रहता है, तो पोल स्टार को देखकर नेविगेशन के काम में हम यूज लेते हैं उसे। दिस इज द उर्सा माइनर। इन द पिक्चर यू विल सी उर्सा माइनर। Ursa minor is resembling with the Ursa major in shape, okay, that's why it's called little bear, okay, or Laghu Saptarshi. It also has 7 stars, okay. At the end of the tail of Ursa minor there is a very important star known as pole star, okay, or Polaris.